Hello students, today in Structures of Atom lecture 15 we are going to study about the shapes of the orbital. As in the previous lecture we have studied about the quantum numbers, that is your magnetic quantum number, your azimuthal quantum number, your spin quantum number, your principal quantum number. So on the basis of quantum numbers, we were able to identify the orbitals, and using some principle, that is Pauli exclusion principle, we got to know that in an orbital the electrons can reside in two spins, either plus half, either minus half. Now it has been learned that the probability of finding the electron does not become zero even at a large distance. Okay, so 100% probable characteristics or the 100% probability of finding the electron you cannot be geometrically figurized. उसको geometrically representation is not possible. So we can draw the representation on the basis of probability of finding the electron is maximum in which region. That plot is known as orbital, or you can say boundary surface diagram. So that plot was made on the basis of radial wave function, or you can say the probability of density of finding the electron. Where is the maximum probability of finding the electrons? Now, as you can see, the radial wave functions and the probability density, they were combined together and known as probability radial functions of finding the electron. So first let us see what is the radial wave function. So the shapes of the orbitals are obtained from the variation of wave function. Wave function, as you know, it is denoted by this symbol, and a function of r, that is the distance from the nucleus. तो दोनों का plot किया गया graph and try किया गया to find the shape of the orbital. Now one thing before starting this topic, this thing I am making you clear that this wave function does not has any physical significance. They do not have any physical significance. That is, व्हेन यू सी, अगर आप कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर रहे हो या फिर मूव कर रहे हो, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके उसको माइक्रोस्कोप के अंडर कर रहे हो, तो आपको ऐसा शेप दिखेगा 1s ऑर्बिटल का, ऐसा 2s का ऑर्बिटल का शेप दिखेगा जो हम पढ़ने वाले हैं. नो, इट इज़ नॉट ट्रू. इट इज़ मेनली ऑन द बेसिस ऑफ योर, यू कैन से प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ योर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर लफ एंड ट्रायल के अकॉर्डिंग एक पिक्चर क्लियर करने के लिए, हमारे माइंड में फिट करने के लिए, हम उसे याद कर सके कैसे, उसके लिए दिया गया है. ठीक है, जैसे आप ज्योग्राफी एसएस में स्टडी करते हो, राइट, लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड्स. ठीक है, तो दैट इज जस्ट फॉर योर क्लियरिफिकेशन. बट एक्चुअल में अर्थ में कहीं पे ऐसे दिखाता है आपको लॉन्जिट्यूड इतना है, लैटिट्यूड इतना है? नो, इट डजंट शो यू. इट इज फॉर योर थिंग्स टू मेक क्लियर. तो सेम वे टू मेक द ऑर्बिटल्स डायग्राम, और यू कैन से मेक द इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हो सकते हैं, ऑर्बिटल्स डायग्राम, ऑर्बिटल्स बोला गया, दैट इज योर ऑर्बिटिकल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. इट डज नॉट हैज एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस. ओके, सो जस्ट सी, you can see this diagram, this graph over here, that is these graphs are shown for 1s, 2s and 2p orbital. So see the graph clearly. In the first graph for 1s, you can see that the wave function for the 1s orbital continuously decreases. क्या कर रहा है वो? continuously decrease हो रहा है with increase in r and becomes sorry, decreases with the r. However, in 2s orbital, what you can see that the wave function decreases in the beginning and then it increases. ठीक है, and then becomes negative. negative जा रहा है फिर. And 2p orbital में क्या देख रहे हो कि the wave function for the 2p orbital rises maximum and then decreases. So it is very interesting to note that the 2s wave function can be positive or negative depending upon the distance. So 2s का जो wave function है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. Now make sure that this positive and negative sign for the wave function has not at all any relationship or any connection with the positive or negative charge of the electron. Okay, now as we can see for the 2s orbital, at a point a wave function reaches to 0, and you can see here it is a representation known as node. So what is node? Node means that point at which the radial wave function becomes 0 is called radial nodal surface, or simply nodes. Now in all the cases, wave function approaches 0 as r approaches to infinity. Okay, now this radial wave function and the radius
के अकॉर्डिंग जो मार्क किया गया है, सो दिस हैज़ अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन अंडरस्टैंडिंग द केमिकल बॉन्डिंग. ये कहाँ पे हेल्प होगा हमको? केमिकल बॉन्डिंग में बहुत हेल्प करेगा, केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर्स में. नाउ नेक्स्ट इज योर, you know, the point at which radial wave function becomes zero is called radial nodal surface or simply node. Now probability density graph probability density graph is denoted by this. So these graphs help us to identify or find the picture where the electron can particularly reside, where 90 to 95% electrons can be reside. So using this graph, boundary surface diagrams were drawn. Now, according to the German physicist, this is Max Born, the square of the wave function at a point gives the probability density of finding the electron at that point. He said that कि इसका जब स्क्वायर फंक्शन लेंगे, वेव फंक्शन का स्क्वायर लेंगे, तो हमको कहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी का डेंसिटी कहाँ ज़्यादा हो सकता है वो बता सकते हैं. बिकॉज वी नो साई स्क्वायर का अगर रोल होगे तो जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, बिकॉज नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है. ठीक है. सो दिस वेरिएशन ऑफ wave function square as a function of r are obtained by plotting the graph against to each other. So as you can see in this graph over here, this is the plot of 1s 2s 2p again shown. So this diagrams look familiar with 38 जो इसके पहले वाले में देखा था रेडियल वेव फंक्शन का, उसके फेमिलियर दिखेगा, एक्सेप्ट दैट दिस बिकम्स पॉजिटिव थ्रू आउट. क्योंकि क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है. नेगेटिव का स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव. सो दिस ग्राफ्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ्स. ओके, नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर 30 जो इसके पहले वाले फिगर में आपने देखा था, दैट फॉर एस ऑर्बिटल, ये जो आप एस ऑर्बिटल का ग्राफ देखोगे यहाँ पे इस फिगर में, सो 1s एंड 2s द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अवेलेबल नियर द न्यूक्लियस. जैसे जैसे आप देखोगे उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कहाँ सबसे ज़्यादा है? न्यूक्लियस के आसपास बहुत ज़्यादा है. वेयर इज at the nucleus, and for p orbital it has zero electron density at the nucleus. न्यूक्लियस के पास उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? जीरो. ठीक है. सो योर रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ग्राफ प्लॉट फॉर द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, हाउएवर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टोटल प्रोबेबिलिटी कि कितना आपका इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्टेंस के साथ बढ़ता है कि कम होता है, वो आपको एक आइडिया देता है. नाउ पे अटेंशन दैट this graphs plotted against it for the radial probability graph, ये जो डिस्टेंस और उसके बीच में वेव फंक्शन के बीच में, तो ये जब पीक जो आपको दिख रही है ना, ये जो पीक, as you can say the graph for 1s orbital shows that the probability of finding the electron is zero in the nucleus, and it keeps on increasing and becomes maximum at a particular distance from the nucleus and then gradually decreases. So the peak of the graph, the peak of the curve gives the distance from the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. ये जो पीक होता है ना, वो आपको बताता है कि प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की कहाँ ज़्यादा हो सकती है. जैसे ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दिस रीजन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. ठीक है. एंड नोड, व्हाट डज दैट नोड सेज? दैट the probability of finding in the electron in that region is zero. That signifies the node. So on the basis of this graph, the electron density graph इसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अकॉर्डिंग बनाया गया एंड डिफरेंट शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स दिए गए. सो द बाउंड्री और nodes, as you know, the finding of the electrons, these are the lobes. सो जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो उनके अकॉर्डिंग उनको क्या मिला कि ये पीक पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? सबसे ज़्यादा. तो उसके अकॉर्डिंग ग्राफ ऐसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटीज इलेक्ट्रॉन्स को प्लॉट किया गया और उसके अकॉर्डिंग फिर काउंटर उसका शेप दिया गया, काउंटर ड्राइंग शेप्स को उसको कवर अप कर दिया गया कि व्हाट दे फाइंड कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा. देखो कितने पीक से? 1 2 3. सो पहले तो न्यूक्लियस के पास, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिली, उस ग्राफ को प्लॉट किया, फिर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिली. ठीक है. तो फिर उसको जब शेप दिया गया तो सर्कल शेप मिला, ये लोब के जैसा शेप मिला. ठीक है. सेम वे यू कैन सी दिस, से दैट उसी ग्राफ का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जो थियोरेटिकल मैंने आपको बताया. जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो न्यूक्लियस के आसपास कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की थी, फिर कैसे बढ़ा, फिर कैसे कम हुआ. ठीक है.
ऑर्बिटल फेस एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेस. दैट इज योर साई वाला. सिंपल जब साई के अकॉर्डिंग करते तो हमको ऐसा मिलता है, साई स्क्वायर के अकॉर्डिंग तो मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का प्लॉट मिलता है. नोड्स मीन्स द रीजन ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और फेस चेंज सरफेस की, मतलब वहाँ से अब उसका फेस पीक क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा. ठीक है, दिस आर द नोट्स फॉर 1s 2s एंड 3s. हाउ टू फाइंड द नोट्स वी विल सी ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स में हम देखेंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द सिंपल. यहाँ पे भी वही है कि आपको द लोवेस्ट एस ऑर्बिटल रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्फेरिकल सिमेट्रिकल शेप्स इन एब्सेंस ऑफ एनी नोड्स. एक्सिस के अलॉन्ग जब मार्क किया गया, शेप्स में हम ये डिस्कस करेंगे. पी ऑर्बिटल का देखो अलग अलग एक्सिस में दिख रहा है ना आपको. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी इस एक्सिस में कभी ज़्यादा मिली, कभी एक्स एक्सिस में मिली, कभी जेड एक्सिस में मिली. ठीक है, नाउ लेट अस सी द बाउंड्री सरफेस डायग्राम. फर्स्ट, व्हाट इज बाउंड्री सरफेस डायग्राम? This is nothing but the shapes of the orbitals may be represented in terms of boundary surface diagram. वो जो आगे आपको ग्राफ्स के अकॉर्डिंग पिक्चर डेंसिटी मिली ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, देखो जैसे ग्राफ्स के अकॉर्डिंग कि मुझे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले इधर थी, फिर थोड़ा गैप आया, फिर उसका पीक बढ़ा. ठीक है, ग्राफ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मार्क किया गया वो साई स्क्वायर के अकॉर्डिंग. ठीक है, so boundary surface diagram, the shapes of the orbitals may be represented in terms of boundary surface diagrams. In this representation, a boundary surface is drawn for an orbital representation which encloses maximum probability about 90% of finding the electron. ठीक है, or you can say boundary surface diagram give the most probable region where the electrons can be residing. Okay, so this boundary surface diagrams for some orbitals are discussed. This is shapes for s orbital. S orbitals are non-directional and are spherical symmetry. It is non-directional, it is same in all the direction. जब उनको x axis हमने पढ़ा है, orbitals are studied in 3D geometry, that is x axis, y axis and z axis. coordinates के according हम study करते हैं. तो जब उनको coordinates के according study किया गया तो s orbitals का जब देखा गया x, y और z में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारे एक्सिस में सेम मिली. ठीक है, so therefore it is known as which type? It is known as x type. It is known as symmetrical spherical in shape because the electron density in all the direction is same. And s orbital n is equal to what? 1. n is 1. So L is 0. So ml की value क्या मिली? 1 मिली. So you have only one orbital. And s orbital, it only consists of one orbital. Remember, s consists of only one orbital. And in one orbital, how many electrons can reside? 2 electrons. Okay, with the opposite spin. ठीक है, so 1s में भी एक ही ऑर्बिटल होगा, 2s में भी एक ही ऑर्बिटल, 3s में भी एक ही ऑर्बिटल. So this is the shape of the s orbital, spherical. It is same in all the direction. As the distance increases, the shapes, the electron density, मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगा, दूर दूर जाता जाएगा. ठीक है, so shapes का साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा. So more the quantum number, bigger is the shape. ठीक है, so how to find the nodal surface? The number of the nodal surface in the s orbital may be given by the energy level n minus 1, where n represents the energy level. So n अगर 1 है तो nodal surface किसके लिए क्या होगा, 0. So for 1s orbital you can say that it is observed that the density of the charge cloud is maximum at the nucleus and decreases with the increase in the distance from the nucleus. ठीक है, 2s के लिए तो n minus 1 मतलब कितने नोड्स होने चाहिए, 1. सो एक नोड है ना, एंड व्हाट इज द नोड? दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0. हाँ, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है आपको, कहीं भी इलेक्ट्रॉन का डॉट दिख रहा है? नहीं, गैप आ गया ना, मतलब ये गैप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं. ठीक है, अभी 3s के लिए कितने नोड्स आएंगे, 2 आएंगे, n minus 1 दैट इज 3 minus 1, 2. So you get 2 regions where the probability of the finding the electron is 0. So they ask you for 2s orbitals how many nodes are possible. For 3s orbitals how many nodes are possible. ठीक है, what are nodes? The probability of finding the electron is 0. Okay. So it is observed, एक चीज़ याद रखना, जैसे जैसे size of the s orbital increases with the increase in the value of n. ठीक है, so size क्या होगी, सबसे बड़ी size 4s की होगी, फिर 3s की होगी, फिर 2s की होगी, और सबसे छोटी साइज किसकी होगी, 1s की. ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड फर्दर
अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस. ओके, इससे तो शेप बढ़ता जा रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर जाता जा रहा है न्यूक्लियस के. ठीक है. नाउ शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल. सो फॉर p ऑर्बिटल l इज 1. l 1 होता है ना p के लिए, और s के लिए क्या होता है? l 0. सो देर आर 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन. 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन है ना, क्योंकि l अगर 0 है तो ml क्या होगा? 2l + 1. सो 2 + 1 दैट इज 3. तो -1, 0 एंड 1 वैल्यू. सो देर आर 3 p ऑर्बिटल्स इन ईच सबशेल. p के सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3. दैट इज p designated by px, py and pz. So as you can see I have drawn over here 3 orbitals. Now make sure जब आप ऑर्बिटल बनाओगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम ये ऑर्बिटल्स जब बनाएंगे, सो आप कभी भी p का ऑर्बिटल ऐसे नहीं बनाओगे 1 2 3. दिस इज द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन. यू हैव टू डू इन दिस वे. 3 ऑर्बिटल्स साथ में. ओके, px, py, pz. So the shape of the orbital is called dumbbell shape. The shape of the orbital is dumbbell shape. अभी जैसे सुनो, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग दिस इज 2px. मैं क्वांटम नंबर उसको 2 दे रही हूँ, क्यों? एनर्जी लेवल 2 में है, तो 2px हो जाएगा, 2py हो जाएगा, 2pz. सो दिस 3 ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी. इनकी एनर्जीज क्या है? इक्वल है, बट डिफरेंट इन देयर ओरिएंटेशन. उनका ओरिएंटेशन क्या होगा? डिफरेंट होगा. ठीक है. एनर्जी क्या होगी? सेम. ओरिएंटेशन क्या होगा? डिफरेंट. So each orbital consists of 2 lobes that is symmetrical about a particular axis. It is along x-axis, this is along y-axis, this is along z-axis. ठीक है. So that is why 2px orbital has 2 lobes, 2py orbitals has 2 lobes and 2pz also has 2 lobes. ठीक है. So the shape of the orbital is called dumbbell shape. इसको lobes बोला जाता है. अभी वो जो आगे एक डायग्राम दिखाया था जहाँ पे ऑर्बिटल लोब्स था ना, सो ये थे वो लोब्स. ठीक है. नाउ दिस लोब्स इज अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट, सो दे कैन हैव द साइंस प्लस साइन ऑल्सो, माइनस साइन ऑल्सो. और ये प्लस साइन और माइनस साइन इस लोब्स में वेव फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं. ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन किसको डिनोट कर रहे हैं? वेव फंक्शन को. ठीक है, ये याद रखना. ठीक है. नाउ जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर. It may be noted that the 2 lobes of p orbital are separated by a plane. That plane separated by a plane having 0 electron density. क्योंकि हम लोग को पता है ना, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक पर्टिकुलर एरिया में 0 होगी. सो उसको हम बोलते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस प्लेन में 0 होगी, उसको हम बोलेंगे नोडल प्लेन. ठीक है. सो इट शुड बी नोटेड दैट द ऑर्बिटल ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर p ऑर्बिटल इज इक्वल इन बोथ द लोब्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स दो, ऐसा नहीं होगा कि इस लोब में ज़्यादा है तो इस लोब में ज़्यादा है, कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो दोनों लोब्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होगी? सेम होगी, इक्वल होगी. ठीक है. और हाउ टू फाइंड द नोड्स ओवर हियर. सो द नंबर ऑफ नोड्स इन p ऑर्बिटल इज गिवन बाय n-2. तो अगर मैं आपको बोल रही हूँ फाइंड द नंबर ऑफ नोड्स फॉर 3p, तो 3p में कितने नोड्स होंगे? 3 - 2, एक नोड. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एक रीजन में 0 होगा. और अगर मैं पूछ रही हूँ 4p के लिए कितना है, तो दैट इज 4 - 2. सो हाउ मेनी? 2 nodes. Okay. So is it clear to you? So next is shape of d orbital, third. So for your d orbital l क्या होगा? d orbital के लिए l क्या होगा? 2 होगा. तो ml की वैल्यू आपको 5 मिलेगी, राइट? So there are 5 possible orientation. So this means that there are 5 orbitals. How many orbitals are there? 5. 1 2 1 2 3 4 5. एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2. तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसमें? 10 इलेक्ट्रॉन्स टोटल. ओके. p ऑर्बिटल में टोटल 6, 1 s में हाउ मेनी? s में कितने? 2. Now there are 5 orbitals in each d subshells. So these are designated by dxy, dxz, dzx, dx square y minus y square and dz square. The shape of the d orbital is called dumbbell shape, double shape. Now make sure that these 5 orbitals are also have equal in energy but differ in their orientation. ठीक है. So the shapes of this orbitals are described below. As you can see, I am describing it. Just pay attention.
So the three orbitals, that is dyz, dxy and dxz, each consist of 4 lobes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 lobes है of high electron density lying in xy, xy, yz and zx planes respectively. So these lobes lie in between the principal axis. Principal axis के between में lie कर रहे हैं. ठीक है. Now the dx square and y square also has 4 lobes, 1, 2, 3, 4, and it is, as you can see, it is similar to that of dxy. बस इसमें क्या होता है, जो z एक्सिस की ओरिएंटेशन है ना वो 45 डिग्री में है. dx square y में क्या होगा, वो 45 डिग्री में. ठीक है. Now and in dz square, as you can see, consists of 2 lobes only along the z axis with a ring of high electron density in the xy plane. So this is the shape of the d orbital known as double dumbbell shape. Next is shapes of f orbital. So the shape of f orbital is complex. Its shape is complex, known as leaf-like structure, and it has 7 orbitals present. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orbitals means how many electrons? One orbital consists of 2 electrons. So how many electrons? Total 14 electrons. ठीक है. So the nodes कैसे find कर सकते, समझ में आया? What is nodes? The region where the probability of finding the electron is 0 is known as nodes. Okay. So I hope this is clear to you. So this is the shapes of the f orbital and the shape of the f orbital. कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में हम नहीं देखेंगे. इसके शेप्स आपको डायग्राम में नहीं आते, बट आपको एक्स पी ऑर्बिटल्स की शेप बनाने के लिए पूछ सकते हैं, एस ऑर्बिटल का शेप बनाने के लिए बोल सकते हैं, और डी ऑर्बिटल का शेप बनाने के लिए बोल सकते हैं. तो आपको शेप्स की डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, एंड नोड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी करना है. ठीक है. आपको क्लियर है ना, नोडल प्लेन क्या होता है? अ प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस on which the probability of finding the electron is 0 is called nodal plane. ठीक है, समझ में आया? ओके, थैंक यू. सो नेक्स्ट क्लास में हम एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम चेक करेंगे. हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे. हम कॉजेज ऑफ डिफरेंट एनर्जी पैटर्न्स देखेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे. थैंक यू.